نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایسے شخص کا نام لینا چاہتا ہوں، ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے نام سے آج بھی مسلمانوں کو فخر ہوتا ہے، گرو محسوس ہوتا ہے، جس کے ایمانی طاقت سے آج بھی مثالیں دی جاتی ہے، جو خلفائے راشدینوں میں سے ہیں، جن کا نام ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ نام ہے جن کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو، مسلمانوں کو اتنی قوت ملی کہ انہوں نے اس کے بعد ایک مختصر سی جماعت ہونے کے باوجود بھی وہ خانہ کعبہ میں یعنی مکہ میں جا کر نماز پڑھا۔ انہی کے یہ وہ نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ نام ہے جن کی مشورے کو اللہ نے وحی بنا کر بھیجا کہ عمر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ وہ عمر جو دور جہالت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، یہ وہ عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے، لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان سے نوازا، جب یہ ایمان میں داخل ہوئے تو اس قدر ان کے اندر وہ دین پیدا ہوا، وہ خوف خدا کا جو خوف پیدا ہوا، خوف الہی جو پیدا ہوا، اسی کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند لفظوں کی روبرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات یعنی کبھی کبھی اپنے ہاتھوں میں تنکا اٹھا کر فرماتے تھے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، مجھے قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ عمر جن کے خوف سے شیطان بھی راستہ منہ موڑ لے، شیطان بھی اپنا راستہ موڑ لے۔ یہ وہ عمر فرماتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا اور مجھے قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑتا، یا یوں فرماتے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میری ماں نے مجھے زنا ہی نہ ہوتا کہ میں اپنا حساب کتاب قیامت کے دن دینا پڑتا۔ ایک بار دور خلافت کا وقت تھا، اپنے کاموں میں مشغول تھے، ایک صاحب آئے، فرمایا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، میرے ساتھ ایک شخص نے ظلم کیا ہے، آپ چل کر اس ظلم کا بدلہ دلوا دیجئے۔ اس شخص کو حضرت عمر ایک درہ مار دیے اور فرمایا کہ جب میں اس کام کے لیے رہتا ہوں تو نہیں آتے ہو، جب اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ فلاں شخص نے مجھ پہ ظلم کیا، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے، جاؤ یہاں سے۔ وہ شخص نراش ہو کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص کو بلایا گیا، اس کے ہاتھ میں درہ تھما دیے، درہ دے دیے حضرت عمر، اور فرماتے ہیں کہ تم بدلہ لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو خطاب کر کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے عمر، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت بخشی، اور پھر تجھے بادشاہ بنایا۔ آج کوئی مظلوم آ کر اپنی سفارش کرتا ہے، ظلم کا بدلہ دلوانے کے لیے کہتا ہے تو اسے مارتا ہے،
कल कयामत के दिन तू क्या जवाब देगा। इसी तरह अपने आप को वो मलामत करते रहे, अपने आप को खताब करके वो मलामत करते रहे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक गुलाम थे जिनका नाम था असलम। वो फरमाते हैं कि मैं और अमीरुल मोमिनीन एक रात कहीं जा रहे थे गश्त में। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दूर जंगल में एक आग जल रही थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर नहीं पहुंच पाया, चलकर इनकी खबर लेते हैं, इनकी खैर खबर लेते हैं और इनके इंतजाम के लिए सामान मुहैया कराते हैं। करीब गए तो देखा कि एक औरत है, चंद बच्चे उनके पास हजारों कतार रो रहे हैं और एक देगची है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है और वो चूल्हे पर रखी हुई देगची है और उस देगची के नीचे चूल्हे के अंदर से आग जल रही है। सलाम कर कर करीब जाने का इजाजत लिए और जब करीब गए तो देखा, पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं और उस देगची में क्या है। औरत ने फरमाया कि ये बच्चे भूख से लरज गए हैं, भूख से जारो कतार होकर रो रहे हैं और वो देगची में उनको बहलाने के लिए मैं पानी रखी हूं ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए और वो सो जाए। औरत फरमाती हैं कि अमीरुल मोमिनीन का और मेरा अल्लाह के यहां फैसला होगा। वो हमारे अमीर बने बैठे हैं और हमारे हाल की खबर नहीं रखते, अपनी रया की खबर नहीं रखते। अमीरुल मोमिनीन रोने लगे, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला तेरे हाल की उमर को क्या खबर। तो औरत ने कहा कि वो हमारा अमीर बना है और हमारे हाल की खबर नहीं रखते, अपनी रया की खबर नहीं रखते। हज़रत उमर वहां से उठे और बैतुल माल की तरफ चल दिए। एक बोरी ली, उसमें खजूरें, कुछ आटा, कुछ चर्बी, कुछ कपड़े, कुछ दिरहम वगैरह लेकर बोरे को भर दिया। फरमाया कि ऐ असलम मेरे कमर पर रख दे। मैंने इरशाद फरमाया कि मैं ले चलता हूं। कहा कि नहीं, कयामत के दिन क्या तू मेरे बोझ को उठाएगा? नहीं, उसे भी मुझे ही उठाना होगा और इसके बारे में भी मुझे ही जवाब देना होगा। हजरत असलम ने उनके कमर पर उठा दी। वो नहायत तेजी के साथ आए और उस देगची में आटा, खजूर और चर्बी रखकर उसको चलाना शुरू कर दिया। हजरत असलम फरमाते हैं कि मैं वहां खड़ा देख रहा था, अपने हाथों से वो देगची को चला रहे हैं और खुद उस चूल्हे में फूंक मार रहे हैं और देखा कि उनकी गुंजान जो दाढ़ी थी, जो घनी दाढ़ी थी, उसमें से धुआं निकल रहा है। जरा आप गौर कीजिए कि क्या आज के कोई भी बादशाह हो, कोई भी हाकिम हो, दुनियावी बादशाह, दुनियावी हाकिम, कैसा भी अमीर हो या कोई भी जमात का अमीर हो, कि अपने साथियों के लिए, अपने रया के लिए ऐसा कर सकता है? नहीं, वो अमीरुल मोमिनीन अपने हाथों से उसको पकाना शुरू किया, यहां तक कि वो खाना पक के तैयार हो गया। फिर उसके बाद अपने हाथों से, अपने दस्त मुबारक से निकाल कर उनको खाने के लिए दिया। वो खूब खुशी खुशी खाने लगे और खेल में मशगूल हो गए। औरत फरमाती है कि तुम्हें अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, तुम थे असल अमीर के मुस्तहिक, तुम थे असल अमीरुल मोमिनीन के लायक, ना कि वो उमर। हज़रत उमर फरमाते हैं
कि जब तुम अमीरुल मोमिनीन के पास जाओगे तो वहां मुझे पाओगे। ये कहकर वो वहां से उठे, थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। उसके बाद उठकर वो चलने लगे और अपने गुलाम से फरमाया कि मैं इसलिए वहां बैठा कि मैं जब वहां गया था तो उन बच्चों को रोते हुए देखा था। अब मेरा दिल कह रहा था, मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें हंसता हुआ देखूं, इसलिए मैं वहां बैठा। इन्हें ऐसा करने के लिए किसने बताया? ये वो दीन जिसको अल्लाह ने हमारे ऊपर उतारा है, वो दीन इन्हें ऐसा करने के लिए बताया। वो दीन, वो हुक्म, जिस हुक्म की ताबी के लिए, जिस हुक्म की इताअत के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, उसने हमें बताया है कि चाहे वो बादशाहियत का मामला हो, चाहे वो गुलामी का मामला हो, हमें किस तरह अपने जिंदगी को गुजारना है, ये हमें बताया है। बताया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन तहज्जुद की नमाज में काफी रोया करते थे। रोते रोते वो बेहोश हो जाया करते थे। खौफ इलाही की जो सदमा था, कभी कभी नमाज में वो रोते, इतना रोते कि कई कई सफ तक रोने की आवाज आती और रोते रोते उनके आवाज बंद हो जाती। ये वो खौफ था। दौरे जहालत का मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। ये वो उम्र थे, ये वो जमाना था कि उस जमाने में बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे थे। कुफार ने मशवरा किया और मशवरा करके इस बात को रखा कि मोहम्मद को कत्ल कौन करेगा। उमर उठे और फरमाया कि मैं कत्ल करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कत्ल कर सकते हो। वो तलवार उठाई और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब मिले जिनका नाम है हजरत साद बिन अबी वकास। फरमाते हैं, ए उमर कहां जा रहे हो? पूछा कि ए उमर कहां जा रहे हो? कहा कि उमर मोहम्मद को कत्ल करने, नौज बिल्ला। हजरत साद कहते हैं कि उनके बदले में बनु हाशिम और बनु जोहरा तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये बात सुनकर उमर बहुत गुस्से में हो गए और पूछा, कहा कि लगता है तू बेदीन हो गया, पहले तुझे मारूंगा, पहले तुझे निपटाऊंगा, और कहकर तलवार निकाल ली। हजरत साहब ने जवाब दिया कि हाँ मैं मुसलमान हो गया, हाँ मैं मुसलमान हो गया। ये कहकर उन्होंने भी तलवार निकाल ली। दोनों की तलवार आपस में चलने ही वाली थी कि हजरत साहब फरमाते हैं, पूछते हैं कि तुम अपने घर की खबर नहीं लेते? सुना है तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो गए। ये सुनना था कि उनका गुस्सा से एकदम वो भर गए और बहनोई के घर के, यानी कि बहन के घर की तरफ चलने लगे। दरवाजे पे जाकर दस्तक दिया तो उनकी आवाज को सुनकर जो साहब कुरान दोनों मियां बीबी को पढ़ा रहे थे, जिनका नाम है हजरत खब्बाब, वो उनकी आवाज सुनकर छुप गए। बहन ने दरवाजा खोला। हजरत उमर के हाथ में कोई चीज थी जिसकी वजह से बहन के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो गया। कहा कि तू अपनी जान को हलाक करती है, तू अपनी जान की दुश्मन बनी है, तू बददीन हो गई। ये कहकर अंदर दाखिल होते हैं तो अपने बहनोई से कहते हैं, क्या बातचीत कर रहे थे, क्या हो रहा था? तुम अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार कर लिए। बहनोई फरमाते हैं, अगर दूसरा दीन हक पर हो तब। ये सुनना था कि उमर उनकी दाढ़ी को पकड़कर बेतहाशा खींचे और खींचकर उन्हें मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। बहन ने बचाने की कोशिश की
आखिर वो उमर की बहन थी, बचाने की कोशिश की, लेकिन उमर ने अपनी बहन के मुंह पर एक तमाचा मारा, जिसकी वजह से मुंह से खून निकलने लगा। उनकी बहन फरमाती है कि ऐ उमर, हमें इसलिए मारा जा रहा है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए, तुझसे जो हो सके तू कर ले। इतने में उमर की नजर वो सहीफे पर पड़ी जिस पे कुरान की आयत लिखी हुई थी, और उस वक्त बहन को खून में लथपथ देखकर उनका गुस्सा भी कुछ कम हो गया था, कुछ ठंडा हो गया था। पूछा कि वो क्या है, लाओ दिखाओ। बहन ने फरमाया कि तू नापाक है और इसे नापाक हाथ नहीं लगा सकते। बाज रिवायत में आता है, बाज रिवायत में आता है कि वो सोच में पड़ गए, आखिर कौन सी चीज है जिसे नापाक हाथ नहीं लगा सकती, जिसके लिए गुस्ल करना पड़ता है, वजू करना पड़ता है। उसे हजरत उमर को गुस्ल कराया गया, वजू किए, उसके बाद उस कुरान की आयत को पढ़ा। सूरह ताहा लिखी हुई थी। अभी कुछ ही पढ़े थे तो एकदम से उनका मिजाज बदल गया, अंदर से एकदम से बेचैनी सी होने लगी। फरमाया कि मुझे मोहम्मद के पास ले चलो, मैं ईमान लाना चाहता हूं, मैं उनके हाथों पे बैत करना चाहता हूं। ये आवाज सुनकर जो साहब छुपे हुए थे, हजरत खब्बाब, वो बाहर निकले। फरमाया कि ऐ उमर, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि या अल्लाह, हजरत उमर और अबू जहल में, इन दोनों में तुझे जो ज्यादा पसंद हो, इस्लाम के लिए, इस्लाम की कुव्वत के लिए अता फरमा। लगता है अल्लाह के नबी की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। जुमा की सुबह अल्लाह के नबी की खिदमत में इस्लाम कबूल किए, ईमान में दाखिल हुए। बताया जाता है कि उमर का इस्लाम में आना, ईमान में दाखिल होना मुसलमानों की ताकत बनी, कुव्वत बनी। लेकिन ये एक मुख्तसर सी जमात थी। जब उमर इस्लाम में दाखिल हुए तो उस वक्त भी एक मुख्तसर सी जमात थी, एक छोटी सी जमात थी, जिसके मुकाबले में पूरा मक्का बल्कि पूरा अरब उनका दुश्मन था। उस बावजूद भी उन्होंने मशवरा करके, मीटिंग मशवरा करके ये तय पाया कि खाना काबा में जाकर उन्होंने नमाज अदा की।